Good morning, students. In the last lectures, we are discussing the good morning, students. In the last lectures, we are discussing rural unemployment. So, what is rural unemployment? There are two types of rural unemployment. First one is a seasonal unemployment, and second one discuss. So, what is the seasonal? This kind of unemployment is only available in the rural areas, especially where it's called slack season or off season. Okay, agriculture activities are totally depend on monsoon seasons. When the monsoon season is not available, remaining 5 to 7 months, the population of the villages area or rural areas are totally unemployed. Okay, so that time the seasonal employment is also found. The labor force of seasonal employment are working in tourism, marriage bands, sugar factories, ice factories and fisheries. Okay, also second points we are also watching, that is disguised unemployment. Disguised unemployment, it's invisible unemployment, it's not looking, but it's available in specially villages of India, where the situations more and more people are working in agriculture sectors where it's actually not needed. Okay, or where it's actually not needful. On that place they are working, so therefore productions or marginal productivity of the productions is going to zero. Okay, because the agriculture sectors is not acquire the proper amount of productions because of heavy workload or heavy employment are working there, or heavy labor force are working there. Okay, the two reasons behind it: first one, they are living in joint family and they are unemployed, so therefore they are working more as compared to needed. ओके, यहाँ पे देखो 10 वर्कर्स की ज़रूरत है, 20 क्विंटल ज्वार निकालने के लिए 16 वर्कर्स काम कर रहे हैं. एक्चुअली इतने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ वी आर वॉचिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट. सिटीज़ में कौन सी टाइप की सिटीज़ में कौन सी टाइप की एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है. सो अर्बन एम्प्लॉयमेंट. अर्बन एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन अर्बन एरियाज़. सिटीज़ में या शहरों में जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगी उसको कहा जाएगा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, ये स्पेशली आपको सिटीज़ में ही दिखाई देगी या टाउन्स में दिखाई देगी. ओके, या बड़े शहरों में या सिटीज़ में दिखाई देगी. इसमें दो टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट आती है. फर्स्ट वन इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? When people are educated and willing to work but do not get a job is known educated unemployment. जब लोग पढ़े लिखे होते हैं, काम के लिए रेडी होते हैं, मीन्स विलिंग टू वर्क बट नॉट गेट अ जॉब, लेकिन जॉब नहीं मिलता है, ऐसी सिचुएशन को कहा जाएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. You are also part of unemployment because you are now studying. Okay, and after study you have to perfectly take a job. Is it not guaranteed? So therefore educated persons are more, but they are willing to job, but job is not available. At that situation is called educated unemployment. पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब करना है लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है, तो इसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा. ये आपको स्पेशली मैट्रिकुलस यानी 10 की पढ़ाई की हुए बच्चों में दिखाई देगी. अंडर ग्रेजुएट जो अब तक 12th या FY SY तक पढ़ रहे हैं उन बच्चों में दिखाई देगा. ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी बच्चों में दिखाई देगा. एंड पोस्ट ग्रेजुएट, कई बार पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों में भी ये आपको दिखाई देगा. कैजुअल अप्रोच टू द एजुकेशन, इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड नंबर्स ऑफ एजुकेटेड यूथ. अभी देखो, पहला है कैजुअल अप्रोच ऑफ एजुकेशन. हम अभी भी एज एन ट्रेडिशनल पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई में स्किल नहीं है. स्किल नहीं है, इसकी वजह से जॉब नहीं है. अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्किल होना चाहिए. कंप्यूटर आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, PPT आनी चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, एक्सेल आनी चाहिए. आप लोगों को अब तक सिर्फ आप पढ़ रहे हो, आप लोग की स्टडी कैजुअल है, उसका रियल लाइफ में इस्तेमाल कम है. तो ये कैजुअल अप्रोच बहुत प्रॉब्लम करता है, पहला. दूसरा है
इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड नंबर्स ऑफ यूथ। पढ़ी लिखी यूथ बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन जॉब नहीं है, इम्बैलेंस है। ओके, कंपनीज आर नॉट गेटिंग जॉब, द फर्म्स आर नॉट गेटिंग जॉब, देयर आर सो मेनी जॉब्स विच आर not ready to do by youth generations. Okay, this is also one of the problem. Next one, preference of white collar job. जो भी यंग जनरेशन है उनको वाइट कलर जॉब चाहिए, उनको आराम से बैठ के कंप्यूटर पे जॉब चाहिए, उनको 10 to 20,000 से ऊपर के जॉब चाहिए। उन जॉब में कुछ भी इलीगल नहीं चाहिए या कुछ लीगल नहीं चाहिए, स्किल नहीं चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए, हार्ड वर्क नहीं चाहिए। तो ये वाइट कलर की जॉब की वजह से एक प्रेफरेंस है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल। अभी देखो आईटीआई पढ़ने वाले जो बच्चे उनके अंदर स्किल होती है, ओके, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे इनके अंदर स्किल है, मेडिकल में पढ़ने वाले बच्चे इनके अंदर स्किल है, बट व्हाट काइंड ऑफ अदर टाइप्स ऑफ एजुकेशन, आप लोग जो पढ़ रहे हो आपके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही है, या जो स्किल डेवलप हो रही है वो कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है या फर्म्स नहीं मांगती वो स्किल। ओके, तो ये भी एक जॉब ना मिलने का प्रॉब्लम्स है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, किस पढ़ाई से आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ये भी अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको किस चीज़ से क्या मिलने वाला है। ओके, अगर वो बीकॉम पढ़ रहे हैं तो उनको बीकॉम से क्या मिलने वाला है, साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस से क्या मिलने वाला है, आर्ट्स में क्या एजुकेशनल की अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बच्चों को मालूम ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है यंग जनरेशन, यहाँ की जनरेशन इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस कर रही है। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे सिचुएशन जहाँ पे पीपल्स एजुकेटेड है, विलिंग टू वर्क से जॉब करने को रेडी है, बट जॉब इज़ नॉट गेटिंग और नॉट गेट अ जॉब नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन को कहा जाएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी ये इस पे आपको मैट्रिकुलस यानी 10 के बच्चे अनएम्प्लॉयज़ दिखाएंगे, अंडर ग्रेजुएट बहुत सारे 12th FY करने वाले भी बच्चे आपको अंडर ग्रेजुएट दिखाई, ये भी अनएम्प्लॉयज़ दिखाई देंगे, ग्रेजुएट हुए बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हुए बच्चे भी अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देंगे। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला है कैजुअल अप्रोच ऑफ एजुकेशन, हम अभी भी ट्रेडिशनल चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं जिनकी रियल लाइफ में हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट इज़ द कैजुअल अप्रोच। दूसरा है इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड नंबर्स ऑफ एजुकेटेड यूथ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, फर्म्स कम है, कंपनीज कम है, प्लेसमेंट कम है और यूथ जनरेशन तो ज़्यादा है। थर्ड है वाइट कॉलर जॉब के लिए बहुत प्रेफरेंसेस है, बहुत सारे बच्चे यंग जनरेशन सिर्फ वाइट कॉलर जॉब मांगती है, अच्छे जॉब मांगती है जहाँ पे उनको हार्ड वर्क नहीं चाहिए, उनको कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के जॉब चाहिए, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी है, अगर उनको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करने की रेडी है। सो दैट इज़ द वाइट कॉलर जॉब। नेक्स्ट है लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्किल। हमने ये भी देखा कि आईटीआई सीखने वाले, इंजीनियरिंग सीखने वाले या डॉक्टर्स वगैरह या बाकी स्टडी करने वाले बच्चों के अंदर एक स्किल है उनके हाथों को, तो उनको जॉब अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे पढ़ाई ऐसी है जिसमें स्किल कम है एज़ कम्पेयर टू अदर वन, सो वहाँ पे जॉब्स कम अवेलेबल है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे बच्चों को 10 के बाद क्या करना है यही मालूम नहीं रहता है, उनको लैक ऑफ अवेयरनेस है, उनको किस चीज़ से या क्या पढ़ने से क्या अपॉर्चुनिटीज़ आगे क्रिएट हो सकती है इसका नॉलेज ही नहीं है। सो इस कारण यहाँ पे यंग जनरेशन इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस कर रही है। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं तो इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स में बी स्किल और अनस्किल। देखो इंडस्ट्री में 3 टाइप्स के वर्कर चाहिए, एक तो है स्किल वर्कर जिनके अंदर कुछ स्किल है, जिनके हाथों को कुछ आर्ट्स है, ऐसे लोग चाहिए, एंड अनस्किल और कचरा गार्बेज या बाकी सारी चीज़ें उठाने के लिए अनस्किल वर्कर भी चाहिए। दिस इज जनरली अ फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपको कभी भी दिखाई देगी, ओपन। ओके, अभी इसके पीछे भी कुछ रीजंस है। पहला है स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ रही है लेकिन उतनी अमाउंट में नहीं जितनी यहाँ की यंग जनरेशन को चाहिए। दूसरा है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन,
ये तो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है कि दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है, एक तो इंडस्ट्री कम है लेकिन पॉपुलेशन वास्ट है या बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। आप किसी भी जॉब में जाओगे, अगर आप ऑलरेडी आपके हाथों को कुछ स्किल है, आपको कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, देन ईमेल, मेल आईडी या बाकी सारी जो कम से कम नॉर्मल C++ या जो कोर्सेस है वो भी अगर आते होंगे तो कंपनीज को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी 1 या 2 दिन में आपको ट्रेनिंग देके जॉब के लिए भेज देती है, जिसके कारण आप सक्सेसफुल अनएम्प्लॉयज़ नहीं होते। नेक्स्ट है लो एडेप्टेबिलिटी टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज भी हम लोग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब तक हमने अडॉप्ट नहीं की है या हमने अब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं की है। दैट इज़ द रीजंस वी आर गोइंग टू बैकवर्ड, जस्ट लाइक all over the world they are using 9G, 10G, and we are using 4G, and we are satisfied also because we are not adapted the proper technology. This is one of the great problems of unemployment. Next one, inconvenient locations of industry. कई जगह पर बहुत इंडस्ट्रीज़ है तो कई जगह पर इंडस्ट्री नहीं है। जैसे पुणे में बहुत इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन उसी वक्त अगर आप नासिक में जाओगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, औरंगाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, या बाकी सारी जो जगह है जैसे भुसावल है, जलगांव है, इन जगह पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। ओके, मुंबई में इंडस्ट्रियल एरिया है, पुणे में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, लेकिन वही अगर यूपी बिहार के सिटीज़ में जहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है, क्राउडेड पॉपुलेशन है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है या वो लोकेशन इनकन्वीनियंट है, वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता लेबर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है लो मोबिलिटी ऑफ लेबर। इंडियन लेबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लो मोबिलिटी, फैमिली, इमोशन या अटैचमेंट, इनकी वजह से यहाँ का लेबर दूसरी जगह पर काम करने के लिए रेडी नहीं होता है। ओके, जैसे आप लोग भी बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे आए हो, लेकिन अगर आपके पापा या आपको भी बोलेंगे कि आप लोग गांव में जाके अपने अपने गांव में कंपलसरी वहाँ पे जाके रहो, तो आप लोग रेडी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे लेबर फोर्स मोबिलिटी नहीं चाहता है। पैसा दे रहे तो पैसे के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पर काम पे जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं जाएंगे। लेबर मोबिलिटी नहीं चाहता है, उसको सेटिस्फाइड वर्क चाहिए। जैसे यहाँ पे से बहुत सारे लोग वेस्टर्न लाइन में जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वेस्टर्न लाइन में जॉब को जाने के रेडी नहीं होते, क्योंकि बहुत वास्ट ट्रैवलिंग है, 4 घंटा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। ओके, सो ये लो मोबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को तैयार नहीं है। इमोशनल है, फैमिली है, घर है, अटैचमेंट है, उस एरिया से लगाव है, जिसके कारण वो लेबर फोर्स दूसरी जगह पर नहीं जाने को रेडी होता है। ये सब रीज़न है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के। ओके, सो जस्ट लिसन और रीड ओनली दिस 2 parts. If you have any queries, ask me in doubt section lectures. Okay, thank you sir, thank you students.